अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Alhamdulillah, we have completed the taxable provisions of the sales tax. Then we have completed the definitions, and the most important definitions were supply, taxable supply, goods, value of supply, time of supply, fraud, right? These were the most important definitions from the sales tax. After that, we have moved towards who are required to be registered, and there was a change in the recent recent finance act. उसमें हमने 2-3 चेंजेस नहीं पड़ी थी, along with manufacturer other than cottage industry, tier 1 retailer, distributor, wholesaler who are dealing with the taxable goods. उसमें हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड की थी. Then after that we have discussed that how to get registration. What would happen if you do not get registered yourself with the sales tax department after getting so many notices? And there were 3 new sections were introduced: 14A-C, 14A-B, I think so, and 14A-D, 14A-E. What would be the first step, what would be the second step, third step and fourth step? कैसे उसको पहले कहा जाएगा, फिर उसके गैस बिजली के कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, इमूवेबल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी. ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा. तो ये बातें हमने डिस्कस की थी. देन हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर मैन्युफैक्चरर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मस्ट बी शोन to the sales tax department, otherwise will not be registered as a manufacturer. आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, प्लांट, मशीनरी वगैरह दिखानी पड़ेगी. But what would happen if a person wants to import the machinery, right? So there would be a conflict of interest, because without getting registration you would be unable to import the machinery. But when you contact with the sales tax department for the registration, they will ask about the machinery facilities, where you have installed these machineries. So in that case, a solution is provided by the tax department that you can get the temporary registration. आप जो है वो temporary registration जो है वो ले सकते हैं, right, with for 60 days. After application, within 72 hours you will be awarded the registration to import the machinery. During that period, you are not allowed to issue the invoices. However, you have to file your tax return, but you are not allowed to issue the input tax, sales tax invoices. However, if you issue the sales tax invoices, the sales tax input will not be allowed. उसमें आपको ये नहीं मिलेगा. These are the things we have discussed, right? यहाँ तक हमने कल जो बात की थी. In the last lecture you requested to discuss question. There were 2 requests. एक तो अभी स्टूडेंट ने की है कि जी लेटेस्ट अटैम्प्ट को डिस्कस कर लें, और एक और क्वेश्चन था सेल्स टैक्स का, कल कहा था क्वेश्चन नंबर 18 था, आई थिंक सो, आई कैप का. उसको भी देख लेते हैं. दोनों क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या है. ओके, फर्स्ट ज़रा लेटेस्ट को अटैम्प्ट को हम देख लें कि उसके अंदर क्या चीज़ें हमारे लिए हैं. अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर जो इशू था वो क्या था? ये क्वेश्चन है जी आपके सामने ऑटम 25 का. इसमें था अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट blah blah prepare the revised computation of a sales tax liability for the tax period August, including the amount of input tax to be carried forward. जो पहली बात की जा रही है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, यू नो इट इज़ अबाउट आउटपुट माइनस इनपुट वाला ये फार्मूला है हमारा, राइट? ये होता है टू बी कैरिड फॉरवर्ड. ये जो है ये आपको पता है 2 जगहों से आपको इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आता है.
या तो 90% के रूल से आता है या आपको फिक्स एसेट की वजह से आता है। यहाँ पर उसने रिफ़ंड का कहीं नहीं लिखा हुआ, तो विच मीन्स के हमारे पास जो है वो ज़ीरो रेटेड गुड शायद नहीं है, इसके अंदर शायद हमारे पास नहीं है। ओके, अच्छा जी, इसमें शम्मस एसोसिएट ओन्ड बाय शम्मस इज़ रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ एज अ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर। देखें, आप कहें, मैं टाइम सेव करने के लिए आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन देता हूँ। इफ़ यू रिक्वेस्ट आई कैन सॉल्व द फुल फ्लेज क्वेश्चन। ऑब्वियसली रिवीजन के अंदर तो हम करेंगे ही, बट आई होप सो कि आफ्टर सॉल्विंग सो मैनी क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन योर सेल्फ। बट इफ़ यू फाइंड सम इशूज यू कैन से दैट ओके सर, यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट दैट सर द क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे पास प्लानिंग है, लेट मी कंप्लीट द थ्योरी फर्स्ट एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साथ साथ न्यूमेरिकल को भी हम देखते जाएं। अच्छा जी, ये मैन्युफैक्चरर भी है, इंपोर्टर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अगर ये इंपोर्टर है तो हमें चांसेस हैं कि यहाँ 297 SRO को टेस्ट किया जाए, जिसमें 25% गेन है। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए। अगर ये इंपोर्टर है, 297 जो SRO था उसमें वो इंपोर्टेड आइटम्स ही अगर आपको याद हो, चाय थी, चॉकलेट था, जूसेस थे, कॉफ़ी थी, फर्नीचर था, गाड़ी थी, है ना, जिसके ऊपर 25% टैक्स रेट लगा हुआ है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होता तो फिर हम 90% का रूल ना लगाते। ठीक है, एसेज, अब ये जो होता है ना, ये जो एसे है, अब आपको ये शम्मस एसोसिएट बार बार वर्ड यूज़ नहीं करेगा, इसको एक्रोनिम बोलते हैं, एब्रीवेशन नहीं कहते। ये बात भी ध्यान में रखें। मैं भी गलत ही बोलता हूँ क्योंकि सुनने वाले ही गलत सुनते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको एब्रीवेशन ही कहता हूँ। बेसिकली इट इज़ एक्रोनिम। जैसे CA है, CA एब्रीवेशन नहीं होता है, इसको एक्रोनिम कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसमें कभी डॉट नहीं लगता। DHA, तो कई लोगों ने गलती से यहाँ डॉट लगाए होते हैं। एक्रोनिम में डॉट नहीं होता। ये डॉट या जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये एब्रीवेशंस में लगाते हैं। जैसे मिस्टर, ये पूरे लफ्ज़ को छोटा किया गया है, एक ही लफ्ज़ को छोटा किया गया है। डिपार्टमेंट, DEPT लिख के लोग आगे डॉट लगा देते, तो ये डॉट जो है ये इसके बाद होता है। ये बात ध्यान में रखिए। ACCA इज़ एन एक्रोनिम, राइट। DHA, CA, ये सारी ये। एसेज टैक्स मैनेजर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है सेल्स टैक्स में। एंड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंप्यूटेशन, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन होता है जिसमें खुद कंप्यूट करके आपको देता है। टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर योर रिव्यू, वो कहता है जी मैंने काम किया, आप इसको रिव्यू करें, राइट। अब ज़रा इसके एक्सप्लेनेटरी नोट देखें तो अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स उसने किया हुआ है, टैक्सेबल ज़ीरो रेटेड एंड एग्जाम्ड सप्लाईज। नीचे उसने रिफ़ंड नहीं मांगा हुआ, ये एक अजीब बात है। हो सकता है कि एग्जामिनर से क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए गलती हो गई हो। नज़र आ रहा है कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई से रिफ़ंड निकलता है, तो एनी हो हम रिफ़ंड लिखेंगे अगर क्वेश्चन में हुआ तो। ओके, आगे नोट वो कहता है जी, नोट में आउट ऑफ 5000 यूनिट सप्लाई टू कस्टमर रिटर्न 500 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग यूनिट फॉर कंजम्पशन, ऐसे डिस्ट्रॉयड दीज गुड्स आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कहता है 5000 यूनिट जो सप्लाई किए हैं द कस्टमर, नोट 1 कहीं ऊपर नोट का उसने शायद रेफरेंस दिया हो। चलें फिर हम ये करेंगे, पढ़ते हुए नोट को देखते जाएंगे। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ठीक है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहते हुए अंदर सप्लाई की जाए तो उसके रूल्स और हैं, लेकिन अगर आप वहाँ सप्लाई करें या वहाँ से इधर लें तो फिर वो टैक्सेबल होती है, राइट। तो हमारी ये क्या है, नॉर्मल परचेजेस है, इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री, इसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। आप इसको ना फोकस करें अभी फ़िलहाल इन इन्फॉर्मेशन को कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि इसको रिवाइज़ करें, उसने अगर कमेंट्स मांगता तो फिर हमने कमेंट्स देते, उसने कहा इसको रिवाइज़ करें। तो हमें तो भाई पहले भी यही इन्फॉर्मेशन होती थी, हम यही उठाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। उसने कमेंट्स तो नहीं मांगे, अगर कमेंट्स मांगता तो हम लिख देते हैं द इफ़ यू वी हैव परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉटेज इंडस्ट्री एज कॉटेज इंडस्ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड इट इज़ अज्यूम दैट इट इज़ अनरजिस्टर्ड।
सो इनपुट टैक्स इज़ नॉट अलाउड। फिर हम ये लिखते, अब चूंकि वो हमसे कमेंट्स मांग नहीं रहा तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट अज्यूम टू गिव द कमेंट्स, हमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को लेना है। और ये अमाउंट्स मिलियंस में है, मिलियंस में 6 सिफर होते हैं। अगर ये लिखा है 11.87 तो मीन्स 11.87 सिफर ये होगा। ये करोड़ों में मैं भूल जाता हूँ, आदत पड़ी। आप मिलियंस में ही, आप मिलियंस में ना लिखें, मैं नहीं एडवाइस कभी भी करता एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ऊपर मिलियंस में अमाउंट होती है, नीचे नॉर्मल होती हैं, तो गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। बिकॉज यू हैव टू वर्क अंडर द प्रेशर, प्रेशर में इंसान से गलती होती है। इसलिए मैंने कभी आज तक एग्ज़ाम के अंदर राउंडिंग नहीं की। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, न्यूमेरिकल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। डोंट डू दैट, आई डू नॉट एडवाइस। मैं नहीं एडवाइस करता कि आप थोड़ी सी, हाँ अपोर्शनमेंट में मैं कहता हूँ वहाँ कर लें, वहाँ इशू नहीं होता। जब आप अपोर्शनमेंट का फर्स्ट कॉलम बनाते हैं सप्लाई का, तो वहाँ मिलियंस में लिखें, वो आसानी होगी आपके लिए। वहाँ आप लिख सकते 1000 कर लें, फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट कॉलम है, अदरवाइज यू शुडंट डू दैट, डोंट मेक इट एज अ प्रैक्टिस। परचेज ऑफ 5000 यूनिट्स, आज सॉफ्टवेयर को कुछ हो गया। जी मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। भाई चल जाना। अच्छा जी, कहते हैं जी परचेज 5000 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड लिस्टेड इन द 3rd शेड्यूल फ्रॉम ABC आर रजिस्टर्ड सप्लायर। क्या है रजिस्टर्ड सप्लाई, कितने हैं 5000, जबकि उसकी रिटेल प्राइस क्या है। अब ज़रा देखिएगा कि हमने करना ये है कि पहले 4 मिलियंस को 425,000 इसको डिवाइड करें 5000 के ऊपर, तो कितने यूनिट्स आते हैं। यानी ये प्राइस है जी 850 रुपीज़ प्राइस पे हमने कोट किया। वैसे ये समझ आई। उसने कहा कि ये 42,50,000 की 5000 यूनिट हमने परचेज़ किए हैं, तो मैंने पर यूनिट प्राइस निकाल ली, क्योंकि उसने मुझे जो आगे प्राइस दी है वो पर यूनिट दी है, उसकी रिटेल प्राइस 1000, राइट। तो मैंने इसको डिवाइड देख लिया कि ये कितने यूनिट हैं, 5000 यूनिट हैं, प्राइस क्या है इसकी, ये है। तो रिटेल के जो रिटेल गुड्स होती हैं उसकी कॉस्ट या सेल प्राइस नहीं लेते, राइट, उसकी नहीं लेते। तो अब इसको क्या करेंगे, हम 5000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो असल में इसकी प्राइस थी 5 मिलियन। तो यहाँ मुझे एग्ज़ाम में कितना लेना है, 5 मिलियन लेना है। और अगर ये इम्पोर्टेड गुड्स होती वही कॉफ़ी वगैरह, तो मैं यहाँ फिर क्या लेता, 25% लेता। दोनों चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी पड़ती। कॉफ़ी होती, ठीक है, तो रिटेल प्राइस भी करता और उसको रेट भी ठीक करता मैं। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, लिहाजा मैं इसी को, अगर कुछ नहीं पता तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक 25% रादर दैन यू आर जस्ट टेकिंग 18% आप लेंगे। परचेज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इसमें मिलेगा हमें, लेकिन ये फिक्स एसेट के तौर पे हम बाद में लेंगे, इसको अपोर्शनमेंट करेंगे। लेकिन अभी अपोर्शनमेंट का मुझे पता ही नहीं है ना, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि अपोर्शनमेंट करेंगे, वो तो सेल से पता चलेगा अपोर्शनमेंट करनी है या नहीं करनी, यहाँ से तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। परचेज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल जो एग्जेम्प्ट गुड्स में यूज़ होगा उसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ओके। रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम अ सप्लायर, सप्लायर ने आपको डेबिट नोट दिया, राइट। अब ज़रा इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ आप हैं परचेज़र, आप क्या हैं, आपको क्या मिलना चाहिए था, आपको अगर परचेज रिटर्न हो तो क्या करना चाहिए था, डेबिट नोट करना चाहिए था, और आपको रिसीव क्या करना चाहिए था, क्रेडिट नोट।
ऐसे ही है। आप क्या है? परचेजर। आप फ्रॉम सप्लायर, यानी आपका स्टेटस क्या है? बायर। आपका स्टेटस क्या है? जनरली इन केस ऑफ परचेज रिटर्न यू बायर इशूज द डेबिट नोट। एम आई राइट? समझ आ रही है? तो ये डेबिट नोट जो इशू किया है ये से परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज बड़ी है। क्या है? परचेज बड़ी है। परचेज में कोई इशू आया था, प्राइस को उसने इंक्रीज़ किया है, तो उसने बजाय ये कहने के कि जनाब आपने डेबिट नोट इशू किया है, आपने क्रेडिट नोट इशू किया, उसने पुट्ठा काम किया। तो इससे एग्जामिनर ने ये कॉन्सेप्ट चेक किया कि इस बच्चे को अकाउंटिंग आती है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है अकाउंटिंग का या नहीं, कि डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है। ओके। अब एक स्टूडेंट गलती कर सकता है, वो कहेगा जी जो परचेजेस में तो हमेशा नेगेटिव माइनस होती है, ये प्लस क्यों हो रही है? परचेज रिटर्न क्या होती हैं? माइनस। लेकिन ये सही किया उसने, 3,20,000 रुपये की अमाउंट जो है ये इस ओके ठीक है, ऐड हुई है। ओके, ये समझ आ रही है? अब आते हैं आउटपुट की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये फिगर हमारे लिए गलत है, हम इसको रीकैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या हो गई? मेरी टैक्सेबल हो गई, ये मेरी टैक्सेबल हो गई। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, ये भी मेरी टैक्सेबल है, प्लस इस पर फर्दर टैक्स भी लगना है अगर नीचे कुछ ना लिखा गया तो। हाँ जी, हाँ बता दिया गया ना एंड कंज्यूमर, तो क्यों फर्दर टैक्स आपने लगाना है? झूठ बोल रहे आप। सही है, वेरी गुड। आपको टेस्ट नहीं कर रहा था मैं, कर लिया हुआ है, तो फिर क्यों ना करवाऊँ? हाँ जी, अभी ठीक समझ आ रही। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑन बोर्ड अ प्लेन एंड राउट टू लाहौर। अच्छा, अगर किसी कन्वेंस पे, शिप पे आप सप्लाई दें और सप्लाई टू अ कन्वेंस फॉर कंजम्पशन लीविंग अब्रॉड, वो ज़ीरो रेटेड होगा। सही है। अब ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर ही आ रही है, तो ये आपकी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है। ये नॉर्मल रजिस्टर्ड है या नहीं? रजिस्टर्ड समझेंगे अगर कहीं नहीं बताया गया तो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर प्रमोशनल पर्पजेस, ये भी टैक्सेबल है, राइट? तो ये भी टैक्सेबल है, ये भी और ये भी। सप्लाई ऑफ 5,000 यूनिट परचेज फ्रॉम ABC टू रजिस्टर्ड कस्टमर। अब ज़रा आइएगा, जब ज़रा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर 500 यूनिट क्या थे? ज़ाया हो गए थे। क्या हो गए थे? अच्छा, अब इस नोट को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट अब इधर भी आएगा, ऊपर भी इसने मेंशन किया हुआ है, दोनों जगहों पर आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं इस नोट को, ज़रा पढ़ते हैं। 5,000 यूनिट हैं 4.6 मिलियन के। आउट ऑफ 5,000 यूनिट सप्लाइड द कस्टमर रिटर्न 500 यूनिट्स ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग अनफिट ऐसे डिस्ट्रॉयड दीज गुड्स आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनर। अब यहाँ सवाल ये है कि उसने नोट तो दे दिया हमें, लेकिन ये नहीं बता रहे भाई साहब कि ये उस 5,000 में ये 500 शामिल हैं या नहीं। सवाल है ना। वो कह रहा आउट ऑफ 5,000 यूनिट सप्लाइड, तो भाई ये जो 500 यूनिट आपने ज़ाया किए हैं, यहाँ आप लिख रहे हो सप्लाई ऑफ 5,000 यूनिट्स, ये आपने 5,000 सप्लाई किए हैं, इसका मतलब ये वैल्यू ठीक नहीं है। अगर आपने गुड्स प्रॉपर सुपरविजन में डिस्ट्रॉय कर दी हैं और ये 5,000 की हैं, तो आपको क्या करना था? इसके अंदर इसमें से 500 को नहीं लेना था। अगर आप गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉय करें अंडर द प्रॉपर सुपरविजन एज पर लॉ, यू आर नॉट गोइंग टू टेक टैक्स, गिव टैक्स ऑन दैट अमाउंट। तो यहाँ 4,500 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? पहली बात तो ये है। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी प्राइस चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम अपना
स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि 4.600 जो है इसको डिवाइड करें 5000 के ऊपर, तो क्या प्राइस आती है? हाँ जी, 920। इसने चीज़ें ख़रीदी हैं 850 की, परचेज़ की हैं और सेल कर दी हैं 920 की। चूँकि ये रिटेल गुड्स हैं जो ऊपर उसने मेंशन की हैं, राइट। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 4500 इंटू 1000। तो पहली बात है ये प्राइस यहाँ पर आनी चाहिए 4.5 है, कितनी बनती है? तो ये वैल्यू गलत है, ये बनेगी यहाँ वैल्यू 45 लाख रुपया, राइट। क्योंकि पहली बात ये है कि इसकी मैं जो सेल करूँगा, जो मेरी सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट इज़ 1000, बिकॉज डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड ऑन दी रिटेल आइटम्स। रिटेल गुड्स के ऊपर जो है वो डिस्काउंट अलाउ। दूसरा, यहाँ उसने दो जगह उसने गलती की है। एक तो उसने यहाँ से 500 को निकाला नहीं, मैंने निकाल दिया, तो एक्चुअल मेरी सप्लाई गिनी जाएगी 4500 की। और दूसरी चीज़ है कि उसने प्राइस भी गलत ली है, तो दोनों मल्टीप्लायर उसने गलत लिए हैं, तो यहाँ प्राइस आएगी 4500 रुपये। इसी तरह चूँकि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए उसका इनपुट भी नहीं मिलता, तो लिहाजा हमें ऊपर जाके क्या करना है, हमें अब यहाँ पर हमने जो 5000 वाली बात रखी थी, यहाँ से भी हमें उन 500 यूनिट्स को निकाल देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4.5 मिलियन ये लेंगे। समझ आ गई? ये आप लोगों ने किया था जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया? सर मैंने ये क्वेश्चन किया है सर, उसने खरीदे हैं, ये परचेज किए हैं, उसने तो इनपुट दे दिया ना, तो फिर यहाँ पे सर 4500,000 क्यों लेना ये इनपुट में? इसलिए देना है क्योंकि जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए उसका इनपुट एज पर लॉ नहीं मिलता। जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो आउटपुट में से ही हमने 500 यूनिट निकाल दिए, इनपुट में से भी निकाल लें, दोनों जगहों से निकाल लें। अगर एग्जामिनर ने किया तो उसने गलत सोल्यूशन किया इसका, अगर एग्जामिनर ने किया तो उसने गलत किया हुआ है। इसका दोनों जगहों से हमें निकालना है, क्योंकि लॉ में क्लियर कट लिखा हुआ है, राइट। नो इनपुट टैक्स इज अलाउड ऑन द गुड्स डिस्ट्रॉयड, राइट। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड अंडर द प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट देन देयर इज नो आउटपुट, फिर आपकी यहाँ बचत होगी, ये चीज़ है। और अगर आपने प्रॉपर सुपरविजन में इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो फिर ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज है, इनपुट भी लें आउटपुट भी दें। अल्लाह खैर सला। सर ये 500 यूनिट्स के अगर एडजस्टमेंट भी तो बना सकते हैं, मतलब 5000 रुपये लिखा है नीचे से माइनस कर दें, नीचे एक अलग एडजस्टमेंट बना के। शॉर्टकट मारेंगे तो मेरी तरह गलती कर बैठे। जो प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है कि पहले जब रिटेल गुड्स हैं उसकी वैल्यू, पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई तक पहुँचे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स में चीज़ दी जा रही है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स तक पहले पहुँचे। कितने नंबर ऑफ़ यूनिट, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कहा ये टोटल जो नंबर ऑफ़ यूनिट है 5000, मैंने पर यूनिट प्राइस निकाली, परचेज़ है 850, जबकि रिटेल गुड्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1000। जब तक मुझे नहीं पता था कि गुड इसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हुई हैं, मैंने 5000 को ही लिया और यहाँ मैंने 5 मिलियन लिख दिया। जब नीचे जाके नोट में पता चला कि यहाँ पर जो प्राइस ली गई है, जो यूनिट्स इसमें से 500 यूनिट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो मैंने 500 निकालने हैं। तो वो काटा लगा के निकालेंगे? नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, वो 5 लाख अगर गलत आपने कर दिए हैं मिसाल के तौर पर, तो उसको क्रॉस करके तो सही कर दें बस। वही नीचे 5 लाख ऐसे भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे माइनस कर लें। ओके, तो ये मेरे ख्याल में इसकी एडजस्टमेंट ये बनती है। सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड 1500 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर। इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स हैं तो ख़ुद से हम 25% वाली आइटम नहीं लेंगे। इसका नोट पढ़ते हैं, ये कौन सी आइटम है, कहीं उसने द इम्पोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट अ हायर टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट, ये उसने बता दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा, फिर हम 25% लेंगे। अब पहली चीज़ तो गलती यहाँ पर उसने ठीक किया हुआ, 25% ही लिया हुआ है, और 1500 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड्स हैं, इसमें कोई गलती नज़र तो नहीं मुझे आ रही।
अच्छा, अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए हमें CNIC वो कहते हैं कि वो हमें दें। तो इसमें हम देखते हैं कि उसने कुछ आगे तो नहीं बताया हुआ। अच्छा ओके, तो मुझे अभी तक यहाँ पर ये ठीक नज़र आ रहा है कि उसने 1500 यूनिट हैं, इसमें कुछ हैं भी नहीं, तो उसने अनरजिस्टर्ड डीलर को दे दिए हैं। इंपोर्टेड आइटम्स हैं, तो इसके ऊपर हमें फर्दर टैक्स भी लेना चाहिए। 50% एडवांस रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन सितंबर। हम किस में हैं? अगस्त में है। गुड्स हमने सप्लाई कब करनी है? सितंबर में। तो इट्स ओके, एडवांस जो है आपकी सेल ही गिना जाता है सेल्स टैक्स में, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये उसने गलत किया हुआ है। आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, फर्दर टैक्स ऑन सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कौन सी ली है उसने? अनरजिस्टर्ड वाली, एंड कंज्यूमर वाली, ये भी उसने गलत किया, ये होनी चाहिए थी। एडमिजिबल क्रेडिट्स, अब ये एडमिजिबल क्रेडिट जो है बंदा पूछे कि अभी तुमने ज़ीरो रेटेड गुड्स किन को लिया, तो इसने कैलकुलेशन भी गलत की है, क्योंकि वो जो ले रहा है वो तो लाहौर में ही पाकिस्तान से पाकिस्तान में फ़्लाइट आ रही है। ये जो एक 17 लाख रुपया ले रहा है ऊपर, ये वाली ये इसने गलत किया है, ये वाला। तो अब देखें, हमें इस कॉलम को देखेंगे तो हम परेशान होंगे। हमें अपनी वहाँ से परचेज़ वैल्यू निकालें, सेल वैल्यू निकालें और इसको नॉर्मली सॉल्व करें। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। ऐसे डिड नॉट क्लेम द सेल्स टैक्स इनवाइस अमाउंटिंग रुपीज़, कहता है कि नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कैलकुलेशन। ये एग्जामिनर ना लिखे तो हम यही एजम्पशन लेते हैं। तो सम टाइम इट हैपन्स कि एग्जामिनर इसको क्लैरिफाई करता है, सम टाइम इसको क्लैरिफाई नहीं करता। तो देन यू हैव टू टेक सम इंट्यूशन के व्हाट्स इन योर माइंड, आपकी इंक्लिनेशन किधर है। क्वेश्चन करते हुए घबराना कभी नहीं है, इम्पोर्टेंसी नामर्दगी शो नहीं करनी, समझ आई ना। लोग लिखते, मैं कहता हूँ जो बंदा लिखते हुए उसके हाथ से पेन नहीं चल रहा और घबरा रहा है, वो एग्ज़ाम में क्या करेगा? जो घर के अंदर नहीं तलवार चला सकता, एग्ज़ाम में तो उसका मूत्र स्वर्जन हो जाएगा वहीं पे जाके। तो उसको कम से कम जो है वो घर के अंदर तो काम ठीक करना चाहिए, क्वेश्चन को ठीक किया करे। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया ना मेरी तरफ से, वो पास है। गलत किया, सारा ही गलत कर दिया, हाँ जी, मेरी तरफ से पास है, मेरी तरफ से तो पास ही है कि उसको मैं जो काम कहता हूँ वो कर रहा है और फियरलेसली कर रहा है। वो फियरलेसली मीन, मैंने कहा क्वेश्चन करो, उसने शुरू कर दिया कि यार ये मैंने क्वेश्चन करना है। मैंने कहा यार ये वाले काम आपने करने, वो कर रहा है। वो ये बच्चा वो है जो डॉटेड लाइंस को फॉलो करता है, जो सोचता है इफ़ एंड बट्स में, यार मेरे दोस्त ने ये वाला क्वेश्चन कहा था, मैं वो ना कर लूँ, यार इतने सारे क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा। भाई जो है वो तो करो ना। एक बंदे के पास मिसाल है कि साबुन बहुत थोड़ा है, गंद लगा हुआ है उसको, और वो सोचे यार साबुन चूँकि कम है तो मैं लगाऊँ ही ना, इतने साबुन से तो मैं नहा नहीं सकता। भाई जितना गंद साफ होता उतना तो करो, बजाय इसके कि यही सोची जाओ टाइम कम है। फिर टाइम कम है, मर जाओगे फिर ऐसे टाइम कम कर करके। करो जो होता है, लेट्स स्टार्ट। आप काम को शुरू करो, अल्लाह खैर से देखी जाएगी। अच्छा जी, तो ऐसे डिड नॉट क्लेम द सेल्स टैक्स इनवाइस, क्या बात हो रही है जब ये कहता है डिड नॉट क्लेम द इनवाइस? 180 दिन जेन में आ रहे हैं, 6 माह, 6 मंथ वाला रूल आ रहा है ना। अक्सर स्टूडेंट इसको मिक्स कर देते हैं। इनवाइस अमाउंटिंग रुपीज़ 0.9 मिलियन रिलेटिव, 0.9 मिलियन से क्या मुराद है? 9 लाख रुपये। टू मार्च ड्यू टू द पेमेंट डिस्प्यूट, दीज डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व्ड इन अगस्त। अब मार्च को तो देन निकाल, मार्च से आगे गिने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर तक इसके पास टाइम था, तो इट्स ओके। अब आप इसको इनपुट में जाके ले लें इसको। गुड्स वर्थ ₹0.08 है ना। मसलन तो खारिज किया है आप लोगों को, भाई 80,000 लिख दो, बेचारे को तंग कर रहे हो। गलती कर सकता है ना स्टूडेंट यहाँ पर। मसलन आप उसका क्या इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, अगर ऐसे एग्ज़ाम में कभी भूल जाओ तो इसको लिखो अपने कैलकुलेटर पे 0.08 और 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देना, जवाब ठीक आ जाएगा। कभी एग्ज़ाम में ऐसा कंफ्यूज बंदा हो जाए, लिख के देख लें। हाँ जी, चलो बहरहाल ये मैं नहीं समझता।
वर टेकन बाय शम्स टू प्रेजेंट एज अ गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। 80,000 रुपये की चीज़ें अपने बर्थडे के ऊपर उसने अपने बेटे के ऊपर लगा दी हैं। तो लॉ क्या कहता है? टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन में है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड राइट फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस और प्राइवेट यूज सप्लाई गिनी जाएगी। तो ये आपके आउटपुट का हिस्सा बनेगा। और किस में लेकर जाएंगे? टैक्सेबल में। अनरजिस्टर्ड नहीं कंसिडर करेंगे वरना फर्दर टैक्स, क्योंकि एंड कंज्यूमर है तो उसमें ले जाएंगे। ऐसे रिप्लेस्ड फॉल्टी गुड्स अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज गुड्स वर रुपीज दिस। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वारंटी जो है वो अंडर सप्लाई नहीं गिनी जाती। अब इसको दोबारा करेंगे या अभी करवा दूं या मैं कल करवाऊं? अब मुझे बताएं। हाँ जी, करवा दूं या नहीं करवा दूं? चले दोबारा कर ले, चले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये तो चीज़ें उसमें ऊपर शामिल नहीं है पॉइंट 3 में पार्टी। हाँ जी, फिर हम इसका इनपुट नहीं लेंगे। तो उसने ये कहाँ का है उसके इनपुट हमने इसका नहीं लिया हुआ? उसने कहा ना कि ये ऊपर शामिल नहीं है, जो ऊपर भी तकलीफ की जो मतलब उसमें ये तो डाटा नहीं शामिल वाला 3 पॉइंट, तो हम इसका इनपुट नहीं लेंगे। उसने कहा कि ये वाली जो चीज़ है ये मैंने सेल में शामिल नहीं की, ऐसे ही है क्योंकि सेल की बात हो रही है ना। ये बात किसकी हो रही है? सेल की। वो कहता ऊपर वाली वैल्यू में शामिल नहीं है, यानी ये जो सप्लाई मैंने की है ये ऊपर शामिल नहीं है। क्या ऊपर शामिल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये होगी ना, नहीं होनी चाहिए। क्या उसने ये कहा कि इसकी इनपुट भी ऊपर शामिल नहीं है? यहाँ उसने मुझे एक एंगल दिखा रहा है, सप्लाई ऊपर शामिल नहीं है राइट। ऊपर उसने मुझे टोटल परचेजेस दिखा दी हुई हैं, तो मैं कैसे अज्यूम करूं कि परचेज में शामिल नहीं है? गलत अजम्पशन हो। अगर मुझे दोनों चीज़ें, दोनों उसके विंग्स बताता तो मैं दोनों को फिर ट्रीट करता। उसने एक चीज़ बताई है कि मैंने सेल की है, ऊपर शामिल नहीं है, मैंने उसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया। तो क्या अकाउंट फॉर होना चाहिए? नो। अकाउंट फॉर होना चाहिए? नो। अगर वो लिखता कि इन गुड्स का मैंने इनपुट भी यहाँ से वो माइनस किया हुआ है, तो फिर मैं क्या करता? मैं उसको ऐड कर देता, क्योंकि वारंटी में जो चीज़ें होती हैं उसका इनपुट मिल सकता है, वो डिस्ट्रॉयड नहीं होती। वारंटी में जो चीज़ें आप देते हैं वो डिस्ट्रॉयड का बिहेवियर नहीं होता उनका, उनकी लीगल जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। सर एक पॉइंट बता दीजिए कि जब रेजिडुअल इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मैं बेटा इसको सॉल्व करने लगा हूँ, फिर देखिएगा। जी सर। जब मैं सोल्व करूं तो फिर मुझे बताइएगा कि यहाँ इशू आ रहा है। आपने प्लीज़ इसको साथ साथ सॉल्व करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट समझते हैं चूँकि मैंने सॉल्व कर लिया मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो नई चीज़ आपको डायमेंशन मिलेगी, उसका नया फ्रेमवर्क सेट होगा। पहले मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर डाइवर्सिफाइड गुड्स मिली हैं? पूरे क्वेश्चन में ज़ीरो रेटेड नहीं, कोई एग्जाम्प्ट गुड्स मिली है आपको? सेल की हो, परचेज की बात नहीं कर रहा, नहीं है। इसका मतलब है कि इस सवाल में अपॉर्चनमेंट बनती नहीं है, इस क्वेश्चन में अपॉर्चनमेंट बनती ही नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे जितनी परचेज है, अब इसमें रूल क्या बच गया? 4 वाला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स माइनस फिक्स एसेट और ऐड फर्दर टैक्स राइट। फर्दर टैक्स भी एक जगह पर ही आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमारा है जी ऑटम 25 और इसमें है शम्स एसोसिएट्स। ठीक है जी, ये पूरा लिखें आप साथ। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी
फॉर द, भाई आप मेरा डांस देखने आए ना, करो ना, लिख नहीं रहे हो। आई एम नॉट नर्वस। हाँ जी, शम्स एसोसिएट कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले अपॉर्चुनमेंट हो ना हो आप क्रेडिट कैलकुलेट कर लें। पहले क्या कर लें? क्रेडिट कैलकुलेट कर लें। तो हम इस पर लिख देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, या इनपुट टैक्स भी खाली कह दें, कोई मसला नहीं है। अपॉर्चुनमेंट होनी हो तो इसको वर्किंग कर लें, वर्किंग 1 वर्किंग 2 से आप काम कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको, मेरा ख्याल है कि अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लूँ ताकि काम करने में आसानी हो। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिया है शायद, उसमें आपको अच्छा जी, सबसे पहले क्या हमारे पास मौजूद है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड, ठीक है, परचेजेस फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? 1187 8.7 मिलियन। और यहाँ हम लिख देते हैं 18%। ये हो जाएगा 23, ठीक हो गया। यहाँ एक सिफर मैंने ज़्यादा लगा दिया। तो एग्ज़ाम के अंदर करते हुए साथ साथ आइटम्स को टिक किया करें ताकि टाइम मैनेज हो सके। ऐसे आपने आइटम को टिक कर लिया, जिसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट हो उस पर भी टिक लगाया करें। जब नहीं लिखने देंगे ना लिखिएगा, जब तक हिम्मत है लिखते जाएं। राइट, एक बंदा था ना, नमाज़ पढ़ रहा था, उसने किसी से पूछा, उसने कहा बगैर वज़ू के नमाज हो जाती है? उसने कहा नहीं, कहता मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ यार, हो जाती है। तो भाई बात यह है कि नहीं लिखने देंगे तो ना लिखिएगा। क्या ख्याल? कोशिश तो करें ना लिखने की, थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलें, शायद वो बात आ जाए। आई एम डूइंग माई इट्स बोनाफाइड सर, I have mentioned my registration number over here. Thanks sir, please, this is my routine. तो समझ जाता, पढ़ा लिखा बच्चा होगा था, चलिए। ऐसे बात का तो होता है, थोड़ा सा ट्रिकी करना पड़ता है। ये आप कौन सी को नकल कर रहे हैं? नकल तो नहीं कर रहे ना, बट ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी आइटम है वो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, ये लिखना ज़रूर है। परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री 1.82, ठीक है, सिफर कर दें इसको। आगे रीज़न स्टूडेंट पूछता सर रीज़न भी लिखनी है, क्या ज़रूरत है रीज़न लिखनी? पूछा है उसने आपसे रीज़न? जब खारिज ना हो तो ना करें, सही है। उसके बाद है परचेज रिटेल, परचेज ऑफ रिटेल गुड्स, परचेज ऑफ रिटेल गुड्स। अब यहाँ वर्किंग शो लाजमी करनी है क्योंकि यहाँ वर्किंग इन्वॉल्व है। तो अब कितने यूनिट्स हैं जी हमारे? 4500 इंटू 1000, ठीक है। एक्सेल से आपको मसला तो नहीं है ना कोई? होता फिर भी मैंने ऐसे ही करना था।
आप मेरी बातों से खुश तो होते होंगे, सही है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, इसको बाद में करेंगे, करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है। परचेजेस, अच्छा ये एक अजीब चीज़ है कि इसने हमें एग्जाम्प्ट गुड्स की परचेज तो दे दी है, वो एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई नहीं दी। इस सवाल के अंदर ये भी एक गलती लग रही। हो सकता है बिकी ना हो चीज़ें, ऐसे किसी के ऊपर जो है वो हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, तो लेकिन हो सकता है वो चीज़ें अभी बिकी ना हो, है ना। परचेजेज फॉर एग्जाम्प्ट गुड्स, परचेजेज फॉर एग्जाम्प्ट गुड्स कितनी है, 2.3 मिलियन। ये भी हो गई। उसके बाद आ गया जी डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम, वेंडर लिख दें या सप्लायर लिख दें, अच्छा नीचे नोट में भी उसने कुछ चीज़ लिखी हुई थी, याद है, डू यू रिमेंबर? नीचे भी एक इनपुट था, हाँ जी, हाँ 9 लाख रुपया था, ठीक है, तो वो भी हम लिख देते हैं। अनक्लेम्ड इनवाइसेस ऑफ मार्च, अनक्लेम्ड इनवाइस ऑफ मार्च 9 लाख रुपया। कोई और आइटम तो नहीं रहेगी, होगी ना सारी इनपुट। तो अब हम इसको डबल लाइन से क्लोज कर लें। और यहाँ फिक्स एसेट जो है उसका तो डायरेक्ट अंदर भी लिखा, क्योंकि यहाँ पोर्शनमेंट है नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। 1,10,000 रुपये का है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जो है, लिख लें, कोई मसला नहीं, पूरा क्रेडिट लिख दें, आदत बना लें, ठीक है। अलहदा लिख तो लहदा ही रहा हूँ, लेकिन इनपुट में लिख रहा हूँ कि क्रेडिट तो है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कैश रजिस्टर, ये आ गया, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं आउटपुट के ऊपर, आउटपुट टैक्स। अब तो आउटपुट की तरफ जा रहा हूँ, लिया है कि दिया है? अच्छा, सबसे पहले जी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। आपके आने से पहले हमने ये बात डिस्कस की थी। ठीक हो गया, ये वाली आइटम भी हो गई। टैक्सेबल सप्लाईज टू एंड कंज्यूमर, ठीक है। एक 1,63,000 मिलियन, ठीक हो गया जी। सप्लाईज ऑफ टू सप्लायर टू एन एरोप्लेन, जो आप बात पूछ रहे हैं कोई बुरी बात, अच्छी बात पूछ रहे हैं, कान में पूछ रहे हैं, मैंने क्या नहीं, मैं वैसे कह रहा, अच्छी बात, मेरे से हाजिर हूँ, मेरी जान, मैं हाजिर हूँ।
मुझे लगता है कि जैसे कोई अच्छा आगे आ गया जी, डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, सर ये प्लेन आएगा वो है प्लेन आएगा, जैसे आप अंग्रेजी आपका दिल करता है आपको कर लें। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जहाज का तो सप्लाई किया नहीं होगा। जहाज़ को नहीं सप्लाई की, जिसको सप्लाई किया आप कर लें। ये भी हो गई। ठीक है, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ रिटेल गुड्स। इसमें एक टेक्निकल इशू ये आएगा कि रिटेल गुड्स के ऊपर 90% का रूल नहीं लगता। जब हम नीचे आउटपुट का 90% का रूल लगाएंगे तो उसमें से रिटेल गुड्स को निकालेंगे। ये एक मसला आता है, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। सही है, रिटेल गुड्स के ऊपर 90% का रूल नहीं लगता। अच्छा जी, तो इसमें क्या था, 4500 यूनिट थे, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। आपने देखा कि इसका 4 सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जो है टू अनडिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, supply of imported goods, अच्छा ऊपर जो हमने इंपोर्टेड गुड्स ली हैं, ऊपर भी आ रहा है इनपुट इंपोर्टेड गुड्स का कि नहीं आ रहा? अगर ये होता ना तो फिर इंपोर्ट के ऊपर भी आपने 25% ही लेना था। अगर ये बताता कि ये इंपोर्टेड गुड्स हैं और वो ये रिटेल वो वाली आइटम्स हैं जो 25 वाली हैं, पर उसने नाम नहीं बताया इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। ये भी हो गया हमारा, एडवांस आ गया जी 1 मिलियन का। एडवांस रिसीव्ड, अच्छा नीचे भी एक हमारी आउटपुट थी, ड्राइंग जो थी कितनी थी वो? 80,000 की, 80,000 की है ना। ड्राइंग्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। सप्लाई अंडर वारंटी, लाख की, ओके। और कोई चीज़ होगी ना, सारे पॉइंट्स। अगर मैं इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करूं तो मुझे 90% का रूल पहले तो देखना चाहिए। पहले मैं इनपुट लिख लूँ ज़रा ताकि आपको इसमें अंदाज़ा हो जाए। ये आ गया मेरा आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स आ गया। यहाँ मैं करूँगा लेस इनपुट टैक्स, वो आप यहाँ पर ये वाला लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा कि हमने पढ़ा था कि रिटेल गुड्स के ऊपर
90% का, लेकिन वो सॉरी फर्दर टैक्स की नहीं लगता, उसकी एक लिमिट थी कि अगर ये 80% से बढ़ जाए, क्या हो 80% से, आपकी जो रिटेल गुड्स हैं कितनी है 4.5 मिलियन की, अगर हम इन टोटल गुड्स का टोटल करें तो सवाल ये है कि क्या उसकी 80% से ज़्यादा है, तो आंसर इज़ नो। मैं गलत कह गया था, रिटेल गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, रिटेल गुड्स के ऊपर 90% का रूल लगता है, लेकिन अगर वो 80% से बढ़ जाए फिर नहीं लगता। तो हम यहाँ लिखेंगे और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, तो ये जो अमाउंट है हमारा आउटपुट, इसका 0.9 लेंगे, राइट, विच एवर इज लोअर। अब जब आपने 90% का रूल यहाँ लग गया तो कैरी फॉरवर्ड लाजमी आएगा। यहाँ पर 90% वाली अमाउंट ली है ना आपने, तो नीचे लाजमी कैरी फॉरवर्ड आएगा। अब यहाँ से करेंगे आप लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, ये इसके ऊपर 90% का रूल आपने अप्लाई नहीं करना। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स, वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की थी, इफ यू कितनी थी वो, यहाँ कहाँ थी वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो सेल की थी, ये थी ना, सेल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स 27 लाख की, यही है ना, 2.7 मिलियन की। जी जो हमने आउटपुट में से इनपुट माइनस किया है, इसका आंसर चाहिए 19,88,420। ये वाला नहीं, गलत है, ये आना चाहिए। यस सर। आपने गलत किया हुआ था, ये ऐसा ही आंसर, ठीक है। सेल्स टैक्स पेएबल, और नीचे लिखेंगे सेल्स टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। वो क्या था आपका, इनपुट टैक्स लेस 90% और आउटपुट टैक्स। इसको बेशक आप इधर भी लिख सकते हैं मेन कॉलम में। नहीं, ये था हमारा एक क्वेश्चन। जी वो जो 9 लाख था ना हमारा, हाँ जी, वो जो क्लेम किया, नोट क्लेम, तो वो सोल्यूशन में उसने इनपुट में से माइनस भी किया हुआ है। 9 लाख कौन सा था? वो जो नोट हमने क्लेम ही ना किया था, मार्च से आ रहा था पीछे नोट क्लेम। हाँ, तो उसने जो इनपुट है उसमें से माइनस किया गया, 9 लाख को दर्ज किया 500 के साथ, फिर डिवाइड कर दिया उससे 5,000 के साथ, जो रकम एक मिनट है, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको देख लूँ।
ऐसे डिडनल इनवॉइस ऑफ मिलियन रिलेटिंग टू द मार्च ड्यू टू द डिस्प्यूट रिजॉल्व इन द मार्च। तो क्या किया इसको? ये जो आ रहा है ना 9 लाख, जो इनपुट है उसमें से इसको माइनस भी किया होगा ना, मतलब कि 9 लाख को 500 के ज़रब दिए ना। क्यों ज़रब दी है? वही तो नहीं समझ आ रही थी। वो जो ऊपर हमने पहला पॉइंट नहीं किया इसका नोट में, पहला पॉइंट। एक मिनट ठहरिएगा, नोट 1 किधर है? वो नीचे है। ये वाला 500 हाँ, ये 500 इनपुट में से माइनस किया हुआ है। उसने ऐसा किया कि ये जो 9 लाख आ रहा था ना, बेटा इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है, हाँ जी, इसको क्या किया? उसने इस 9 लाख को 500 के साथ पहले ज़रब किया, फिर डिवाइड किया 5000। वो जो आंसर आ रहा था वो माइनस किया इनपुट में से, इनपुट का जो आंसर आ रहा है। ये सब किया ऐसे लोग हैं गलती किया होगा नहीं हो सकता है उसने कुछ किया, मेरे से गलती होगी हो। सर जो हम क्लेम नहीं करते हैं इनपुट में ही ऐड करते मैं देखूं किया क्या उसने ना, शायद इनको मुझे बात समझाने में मसला आ रहा हो या मुझे समझने में मसला आ रहा हो। ये है वो डिपेंड सर वो आउटपुट की बात होगी। ये वाला हाँ जी, उसके ऊपर। 9 लाख का। हाँ जी, इनपुट इनएडमिसिबल अनएडजस्टेबल इनपुट। अनक्लेम्ड सेल्स टैक्स इनवाइस, बेटा ये तो ये ली हुई है ना, ये तो हमने ठीक किया हुआ है 9 लाख का। ये तो ठीक है ना, पर जो नीचे उसने किया ना वो नहीं समझे। ये जो 0.09, हाँ ये वाला। मैं ये कह रहा हूँ ये 2 दफ़ा अमाउंट उसने ये किस चीज़ की ली हुई है? हैं सर जो नीचे उसने 2-3 कॉलम बनाए थे ना नीचे, इनपुट आउटपुट और उसके नीचे भी 2-3 चीज़ें बनाई थी, वहाँ इसमें उस पर रेड का था। भाई जवाब, ये हमारा जवाब क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है हमारा एक एक करके देखे ना, 31-36 आ रहा है पहले हमारा आंसर। ये वाली ये अमाउंट ठीक है, ये भी ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स लिस्टेड इन द 3rd शेड्यूल, ये भी ठीक है। वो हमने 4.5 दिया ना इसमें 5। बेटा वही उसने कर दिया ना, मैंने यहीं 500 निकाल दिया, उसने नीचे जाके निकाल दिया। उसने ऊपर पूरा 50 ले लिया, ये वाला जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई उसका, ये उसने इनपुट लेके ना किया पुठे तरीके से, गलत तरीके से उसने काम किया है कि इस 0.9 को लेके ना, आप इस 0.9 को ले रहे हो, उसने इस 0.9 को लिया है। आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये है, ये वो है। उसने इसको एडजस्ट किया है 0.9 को, उसका 500 का इनपुट उसने यहाँ से माइनस किया हुआ है। आप लिखो 9 लाख, लिखो कैलकुलेटर पे 9 लाख रुपया, 9 लाख लिख लिया आपने, राइट। उसमें से उसने कितना माइनस किया है, इसका कितना बनता है? अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 50 का 18% लें, मैं दोबारा करता हूँ, 5 × 0.18, ठीक है। उसने पहले ऊपर 9 लाख लिया, नीचे उसने क्या किया, 4500 का उसका जो 500 है, 500 × 0.18, ठीक है। उसने यहाँ पर ये किया उसने, ठीक है। तो मैंने ऊपर ही एडजस्ट कर दिया, सही है। मैं अगर गलती होगी तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरे से कोई गलती होगी है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सर हमसे नहीं, मैं कोई बात नहीं, पास फेल तो आप ही नहीं होना, लेकिन फिर भी मैं माजरत। एक और सवाल था, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो जो हमारी किताब है उसका पेज नंबर है, उसको भी ज़रा एक दफ़ा देख लें ताकि ये इशू
क्या बात की आपने। क्वेश्चन बैंक किधर गया जी इसका? क्वेश्चन बैंक आई कैप का ये क्वेश्चन बैंक है ना, यही वाला। बेटा पेज नंबर आप बताएं, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था। इन्होंने पूछा कि अगर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट की जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना आउटपुट होगा ना इनपुट होगा। अच्छा जी बेटा वो क्वेश्चन का मुझे बताएं, पेज बताएं बुक का जिसके अंदर आपने कहा था क्वेश्चन बैंक का, चैप्टर 18 क्वेश्चन। बेटा पेज नंबर बताएं मुझे नहीं इस तरह पता चलेगा। आई कैप की किताब का नंबर बताएं, किस पेज के ऊपर है ये क्वेश्चन 18, या उसका नाम बता दें, मैं कैसे सर्च करूँगा? चैप्टर 18 कौन सा है ये? चैप्टर 18 एक स्टूडेंट था तो जब सारा ये वाला जुबैर एंटरप्राइजेस का, मेरा ख्याल है यही इन्होंने पूछा, पेज 74 क्वेश्चन नंबर 5 जुबैर एंटरप्राइजेस, कंट्रोल एफ। एक स्टूडेंट था तो A74 + 10 84 पे चले जाते हैं डायरेक्ट, 10 नंबर आ गए हैं, 10 पेजेस ये आ गए। इसमें क्या इशू बेटा? इसमें ये इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का है, ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चन में मसला है या किसी जगह मसला है मुझे बता दें, ताकि टाइम कम है मैं इसको फिर एड्रेस कर दूँ। वो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट से, मैंने पूछा कि भाई आपको समझ आ गई है? कहता नहीं सर मसला आ रहा है। मैंने कहा क्या, कहाँ मसला आ रहा है? कहता दोबारा करवा दे सारा सवाल। ठीक है सारा सवाल दोबारा करवा, यानी जो कुछ आपने पूरे 1 घंटे में जो पिछला जो डांस किया है दोबारा करके दिखा। क्या ऐसे भी सजादे होते हैं। अच्छा इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अभी मुझे उन्होंने बताया नहीं है कि इसमें क्या इशू है। जुबैर रजिस्टर्ड पर्सनस क्वेश्चन में वही रिक्वायरमेंट होगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज एंगेज। ये आई कैप की किताब है जी, उसका पेज नंबर 74 है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड द कंपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है जी, अनरजिस्टर्ड है, प्लस इसमें फर्दर टैक्स भी लगेगा। रिक्वायरमेंट में पॉइंट ए जो है, अच्छा उन्होंने कहा जी रिक्वायरमेंट का जो पॉइंट ए है वो बता दें। कैलकुलेट द सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। रिफंडेबल तो आपको पता है 0 रेटेड से आता है, पेएबल आपका आउटपुट माइनस इनपुट प्लस फर्दर टैक्स ये आता है आपका। फॉर द मंथ ऑफ जून गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने कहा जी जो ट्रेड डिस्काउंट है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन उसके ऊपर आपने बात करनी है कि उसका क्या ट्रीटमेंट दिया, इसकी अब उसने यहाँ एक्सप्लेनेशन मांगी है। अब आप सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बल्कि एक्सप्लेनेशन भी बाद में देंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नीचे उसकी द गुड्स गिवन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव, जो ड्राइंग्स हैं उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। द इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी परचेज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट ओनली, उसका इनपुट क्लेम होगा, रिफंड होगा उसका। एंड द इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। हम हैं जून में, हम हैं
जून में, तो जो इनपुट हम नवंबर का नहीं क्लेम कर सके तो कब तक क्लेम कर सकते होते? 6 माह। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इसने ये चीज़ें भी साथ उसने पूछी। मैंने कहा कि क्वेश्चन को अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर, अ गुड रीडर इज़ अ गुड लिसनर, ए गुड स्पीकर। अच्छा सुनेंगे तरीके से किसी की बात को तो अच्छी करेंगे। तो सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स है जी, पहली उसने ये पूछी है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट, उसने ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया है तो डिपार्टमेंट को नुकसान दिया है ना ट्रेड डिस्काउंट जब लेस करेंगे। तो परचेजेज में से इसका नीचे उसने कहीं नोट दिया होगा, कहता जी द फिगर फॉर सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑल स्टेटेड एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक तो इसको ज़रा ध्यान से करना। अब आप जितनी भी सेल होंगी उसको आप 0.18 डिवाइड बाई 1 और अगर वो 25% पे है तो फिर करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 1 ये वाला काम करेंगे आप। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। इतनी बात तो ठीक है, बट वाज नॉट शोन ऑन द टैक्स इनवाइसेस। तो आप इसको एड बैक नहीं करना भाई, इनकम टैक्स नहीं कर रहे मेरी लाल भी, एड बैक तो नहीं करेंगे ना, एड बैक नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एड बैक नहीं करेंगे। नहीं मसला नहीं है, आपका आंसर गलती होगी है, एड बैक नहीं करना, इसका जवाब यही है। सही है सीधी बात यही है कि मतलब कहेंगे तो आपका नुकसान होना, मेरा कुछ नहीं होना। इसका यही कि इसमें एड बैक वही होगा जहां हम रिकैलकुलेशन कर रहे हैं, वो तो हमने की कोई नहीं है। गुड्स वर्थ, तो एक का रिप्लाई तो हमें यहाँ से मिल गया था। गुड्स वर्थ ऑफ 1 वर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि नहीं, यहाँ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसका उसने नोट भी मांगा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऊपर जाते हैं, क्या ये मैन्युफैक्चरर है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब ठीक है कि हम इसको सप्लाई में डालेंगे। मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब थोड़ा सा टाइम, थैंक यू वेरी मच। तो ये इसका भी उसने आपसे आंसर मांगा हुआ है, तो इसको ट्रीटमेंट आप करेंगे कि ये आपकी आउटपुट का हिस्सा बनेगा। ऑल पेमेंट्स वर मेड इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड पेड थ्रू क्रॉस चेक। उसने कहा परचेजेज भी में भी सेल्स टैक्स शामिल है, इसका मतलब वहाँ पर भी आप 0.18 डिवाइड बाई 1.18 वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर सेल्स टैक्स आएगा, खाली 18% नहीं करेंगे। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट ओनली ऑफ ₹10 मिलियन इंक्लूसिव वाज मेड ड्यूरिंग द, ये आपने की है, ठीक है, ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ऊपर शामिल नहीं है। तो इसको आप अपने क्वेश्चन में नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट इसको रिफंड में ले जाएंगे, क्योंकि ये रेजिजुअल इनपुट टैक्स नहीं है। रेजिजुअल इनपुट टैक्स उसे कहते हैं जिस एसेट को यूज़ करने से या जिस टैक्सेबल परचेजेस को यूज़ करने से एक से ज़्यादा तरह की सप्लाई पैदा हो। अगर किसी प्लांट या मशीनरी से, अगर किसी रॉ मटेरियल से एक ही तरह की प्रोडक्शन हो रही हो, या वो टैक्सेबल हो, या वो ज़ीरो रेटेड हो, या वो एग्जेम्प्ट हो, उसको रेजिजुअल या कॉमन इनपुट टैक्स नहीं कहते। तो इस प्लांट से एक ही तरह की प्रोडक्शन हो रही है और वो है ज़ीरो रेटेड, और वो क्या है, रिफंड होगा। इनपुट टैक्स ऑफ 100,000 pertaining to the raw material purchase for the manufacture of taxable goods in November could not be claimed due to an oversight। तो आप इसमें लिख देंगे कि इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये टाइम बार्ड है, ये क्या है, इसलिए इसका इनपुट क्लेम नहीं हो सकता। थोड़ा सा मज़ीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाउएवर अंडर सेक्शन 66 अ टैक्स पेयर हैज़ अ राइट टू क्लेम अ रिफंड ऑफ दिस इनवॉइस। सेक्शन 66 ये हमें कहता है, ये रेफरेंस लाजमी देना, जब अगर ऐसी बात लिखना चाहते हैं तो लाजमी रेफरेंस दें, वरना बात ना करें, मुंह चुप बंद रखें। अगर बात ठीक नहीं हो रही तो मुंह बंद रखें, ये भी एक असूल होता है गुफ्तगू का। हमारा एक दोस्त कहता गुफ्तगू करें हम, उससे सही गुफ्तगू बोला नहीं जाता था, उसका नाम हमने गुफ्तगू रख दिया वो बड़ा चिढ़ता था।
उससे ना बोला नहीं जाता था, हमें बस मजाक से अवॉइड करना चाहिए, उस बेचारे से गुफ्तगू नहीं बोला जाता। वो एक थी हमारी तीसरी क्लास में एक लेसन था गुफ्तगू के आदाब, अभी भी है कि नहीं है, एथिक्स फॉर द डिस्कशन, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे तो था, उर्दू की किताब था का गुफ्तगू के आदाब। किसी की बात को, आजकल तो वैसे चीज़ें पता नहीं क्या डाल दी हैं, तो हमें बड़ी अच्छी स्टोरियाँ पढ़ाते थे कि बोलना कैसे चाहिए, किसी की बात को तसल्ली से सुनना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों से शफ़क़त से बात करनी चाहिए। तो वो उसको तो हमारे उस्ताद कहते थे, रोज़ आके कामचोर होते थे, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, वो आते थे आके जनाब चाय पीनी, धूप में बिठा लेना हमें, ग्राउंड में गप्पे लगानी, चल भी तू पढ़, हमने किताब लेके तो तू पढ़, बस हम पढ़ पढ़ के तो लेक्चर ख़त्म, चल भी घंटी बजनी अल्लाह अल्लाह, और जनाब कभी उस्ताद के पाँव दबा रहे हैं, कोई सर में मालिश कर रहा है, ये हालात होते हैं। तो वो जब पढ़ता था तो कहता गुफ्तगू क्या था। हाँ जी पूछें। आपकी अच्छी बात ये है कि आप घबराते नहीं माशाल्लाह। हमने एक एसेट खरीदा है, तो वो इस माह में हम दोनों ने, क्या आपने खरीदा है? हम दोनों ने मजाक है, दोनों ने मिलकर खरीदा है। तो हमने सर जी उसका एसेट खरीदा, उसी माह में उसका इस्तेमाल अभी स्टार्ट नहीं किया, तो उसका इनपुट मिल जाएगा। इनका सवाल ये है कि अगर हमने कोई एसेट परचेज़ किया है और उसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं किया, थैंक यू। सेल्स टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स जो है वो आप अगर ले लें तो वो आपको इनपुट मिल जाएगा। अगर वो परचेज़ हो, गुड्स हों या एसेट हों, उसका इनपुट आपको मिल जाएगा, रिफ़ंड भी मिल जाएगा। कुछ चीज़ें अगर हमारे स्टोर में पड़ी एक्सपायर हो जाए, उसका ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपकी चीज़ें पड़ी पड़ी ऑब्सलीट हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, देयर इज़ नो सेल्स टैक्स ट्रीटमेंट अनलेस यू डिस्ट्रॉयड, अनलेस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। पड़ी पड़ी चीज़ें ऑब्सलीट हो जाएं, उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू नीचे चली जाए, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं है। कई जगहों पे ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की अपॉर्चुनिटी करता है, कई जगहों पे नहीं करता। उसका वो कह रहे हैं कहीं पर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की अपॉर्चुनिटी करता है, कहीं नहीं करता। जब आपकी बिजली जहाँ इस्तेमाल होगी और उससे टैक्सेबल एग्जेम्प्ट या ज़ीरो रेटेड गुड्स बनेगी तो अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी। अगर बिजली जो है आपकी कोई एक ही प्रोडक्शन कर रही है, वहाँ उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। जिस क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उसमें हो सकता पूरे सवाल में अपॉर्चुनिटी ना हो रही हो। वो क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, फिर मैं बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही, फिर मैं दोनों का आपको बताऊंगा इसमें क्यों नहीं हो रही, इसमें क्यों हो रही है। और अगर हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए उसको जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपैरेबल सिचुएशन में आप चले जाएं, तो ऑब्वियसली आपको दोनों सवालों को उस लाइन को तसल्ली से पढ़ना चाहिए, उसकी सप्लाई का एनालिसिस करना चाहिए कि वेदर देयर इज़ अ डाइवर्सिफाइड सप्लाई और नॉट। तब आपको समझ आएगी कि लाइन में फ़र्क कहाँ आ रहा है। और कोई चीज़ सर जी, जो ऐसा हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं उसका तो हमें इनपुट नहीं ना मिलता, हम एंड कंज्यूमर हो जाते हैं। इसमें उसने नहीं, ये आप पूरी बात ठीक नहीं कर रहे, उसमें से कुछ गलती पार्शली ठीक है। एसेट, हर एसेट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और फॉक लिफ्टिंग व्हीकल, इन एसेट्स के ऊपर अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटीज़ में या ज़ीरो में इस्तेमाल करेंगे तो इसका इनपुट मिलेगा। वो तो मिल जाएगा। इसमें उसने ना एयर कंडीशनर दो लिए थे और उसमें आपने जो न्यू खरीदा उसमें उसने बात की है। अब देखें इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है कि खालिद साहब कहते हैं ये ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है, ये फिक्स एसेट की डेफिनेशन में आ रहा है। ये ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को अलग लिखते हैं, एयर कंडीशनर को अलग लिखते हैं, इसको मशीनरी में ले जाते हैं। इसलिए खालिद साहब ने यहाँ लिया होगा। ना भी लें ऑफिस इक्विपमेंट समझ के तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉ ने इसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला होगा। जो लॉ ने नेगेटिव लिस्ट दी है ना, क्रॉकरी, लॉन्ड्री, कपड़े, गिफ्ट वेज, उसके अंदर एसी शामिल नहीं है, उसमें फर्नीचर शामिल है, ऑफिस इक्विपमेंट शामिल है, समझ आ रही है, व्हीकल शामिल है उसके अंदर, बेवरेजेस उसमें, लेकिन एसी शामिल नहीं है। इसलिए खालिद साहब ने स्पेसिफिकली उसको यहाँ लिया हुआ है। और कोई सवाल? ख़त्म, थैंक यू। आप क्वेश्चन किया करें तो चीज़ों की समझ आती है, लेकिन जब